Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and focused toward your studies and just studying constantly and watching my videos on a regular basis. And so, children, we are reading the chapter. We have started the new chapter, which is the social influence and group processes. In that regarding, in the previous one video, we have studied about that what is group, what are the characteristics of group, and we have studied about the related terms of the group, like we have studied about what is crowd, what is team, what is audience, what is mob, how the team is different from the group, how the crowd is different from the team. Okay, so their correlation also we have discussed. Now moving forward to the next topic from this chapter is, the topic is, why do people join group? Why do people join group? हमने ग्रुप तो पढ़ा कि ग्रुप क्या होता है. अभी ये क्वेश्चन अराइज होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू पीपल जॉइन ग्रुप? ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं? Why we want to be a part of someone's group? Why we want to be a part of people? क्यों? What is the reason? All of you are members of your family, class and group with which you interact or play. Similarly, other people are also a member of a number of groups at a given time. Different groups satisfy different need, and therefore we are simultaneously member of different groups. This sometimes creates pressure for us because there may be competing demand and expectation. So most often we are able to handle these competing demand and expectation. So basically the gist of the story is that people join group to satisfy their needs. Every human being are bounded with some needs. If you remember the Maslow's hierarchy of need, he has taught about different kind of needs. The first one is the biological need, then come the safety, then come the belongingness, then self-esteem and self-actualization. तो मैस्लो ने भी कहा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सराउंडेड विद सम बायोलॉजिकल नीड एंड सम साइकोसोशल नीड. ओके, so obviously in order to satisfy our need we join the group. So some of the points are there which give you the reason for joining the group. The first of the reason for joining the group is security. Security सबसे पहला रीजन है. हम लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम ग्रुप में सिक्योर हैं. फैमिली हमारा एक ग्रुप है तो हमें लगता है हम उसके मेंबर बने रहेंगे तो हम उसमें सिक्योर रहेंगे. When we are alone, we feel insecure. Group reduce this insecurity. Being with people give a sense of comfort and protection. As a result, people feel stronger and are less vulnerable to threats. Okay, so ग्रुप से हमें सिक्योरिटी मिलती है और हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हमें डर, we have a less threat. हमें डर कम लगता है जब हम ग्रुप में होते हैं. आपने ऑब्जर्व किया होगा when any person walking alone on the street and when anyone is walking in a group, तो ग्रुप में रहने से they have a confidence also, they have a less threat also, they become more strong, they have a comfort and they have a sense of protection. So ग्रुप हमें sense of comfort भी देती है और protection देती है. Sense of comfort or protection. So one of the reason for joining the group is security. One of the reason for joining the group is security. Secure. Second is the status. Now we join the group for status also, children.
एक और टॉपिक है, हम लोग क्यों ग्रुप ज्वाइन करते हैं कि स्टेटस के लिए। हम ग्रुप में होते हैं तो हमारा एक रोल होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा एक स्टेटस होता है। When we are a member of group, we are perceived to be important by other. We feel recognized and experience a sense of power. Okay, status क्या provide करता है हमें? Sense of power. These are the points are very helpful to you children for making your notes. Security क्या provide करता है? Sense of comfort and protection. Status provide करता है sense of power. ठीक है, तो ग्रुप में इसलिए रहते हैं कि हमें पावर चाहिए और कि स्टेटस चाहिए। ग्रुप से हमें सिक्योरिटी मिलती है, ग्रुप से हमें स्टेटस मिलता है। नाउ क्यों ग्रुप ज्वाइन करते हैं? द थर्ड रीजन फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप इज सेल्फ एस्टीम। यू नो चिल्ड्रन, यू हैव रेड अबाउट द सेल्फ एस्टीम इन चैप्टर 2, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। You know what is self-esteem? A value judgment of our own self is a self-esteem. So जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम भी इनहांस होता है, हम अपनी वैल्यू करते हैं, हम अपनी इंपॉर्टेंस करते हैं। सो ग्रुप प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ एंड एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी। बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस ग्रुप इनहांसेस वंस सेल्फ कॉन्सेप्ट। सो ये क्या करता है? ये सेल्फ वर्थ को इनहांस करता है, सेल्फ वर्थ। ओके, अपनी इंपॉर्टेंस की रियलाइजेशन कराता है जब हम ग्रुप में होते हैं। ग्रुप हमें सिक्योरिटी देती है, ग्रुप हमें स्टेटस देता है, ग्रुप हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, हमारे सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है। दीज आर द 3 पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। जो पॉइंट्स में सेंस ऑफ कंफर्ट, सेंस ऑफ पावर, दिस विल हेल्प यू टू क्रैक योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आल्सो। सो डोंट कंसिडर इट अनइम्पॉर्टेंट। ओके, इसको कहीं से भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं कंसिडर करेंगे। सो व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप? इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स है। व्हाट इज द 4th पॉइंट? सो अगेन रिपीट हम कर रहे हैं, पीपल ज्वाइन करते हैं ग्रुप को सिक्योरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए और सेटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल नीड। सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस साइकोलॉजिकल। हमारी ह्यूमन बींग्स के कुछ सिर्फ बायोलॉजिकली नीड नहीं होते बच्चों, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड भी होते हैं। वी वॉन्ट टू रिलेट विद अदर पर्सन, वी वॉन्ट टू इंटरैक्ट, वी वॉन्ट एन अचीवमेंट, वी वॉन्ट एन एफिलिएशन, दैट इज ऑल अ सोशल नीड। ओके, सो सेटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल। तो हम जब ग्रुप में होते हैं बच्चा, तो ये हमारे इस साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को सेटिस्फाई करता है। जब हम ग्रुप में होते हैं हमारी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड सेटिस्फाई होती है, हमें एफिलिएशन मिलता है, हमें लव मिलता है, हमें बिलोंगिंगनेस मिलती है, विच मेक अस स्ट्रॉन्ग। ओके, सो ग्रुप सेटिस्फाई वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड सच एज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, giving or receiving attention, love and power. Group, family भी group है। क्यों family में रहना चाहते हैं? You also have find that there is a very vast difference between the person who is living with their family and the person who is living alone. You can see that the person who is living alone, the person who is living alone, they are very stressed out. जो अकेले रहते हैं कितना स्ट्रेस आउट रहते हैं, दे हैव सो मच एंजाइटीज, दे हैव सो मच स्ट्रेस। एंड दोज हु आर लिविंग विद द फैमिली, बिकॉज फैमिली इज समथिंग विच मेक यू स्ट्रॉन्ग, विच गिव यू अटेंशन, विच गिव यू लव, विच गिव यू पावर, बिलोंगिंगनेस। ओके, नेक्स्ट इज गोल अचीवमेंट। ग्रुप में हम क्यों रहना चाहते हैं बच्चों? ग्रुप में रहने का क्या रीजन है? हम अपने गोल को भी अचीव करना चाहते हैं। ग्रुप में रहने से हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि क्यों लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। पीपल ज्वाइन द ग्रुप फॉर सिक्योरिटी, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, सेंस ऑफ कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। देन दे वांट अ स्टेटस, ओके, देन दे वांट अ सेल्फ एस्टीम,
ओके, सेल्फ एस्टीम चाहिए, देन सेटिस्फेक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड. ग्रुप इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ सेटिस्फाइंग योर साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड. ओके, देन उसके बाद क्या आता है, ग्रुप से हम क्यों ज्वाइन करते हैं, गोल अचीवमेंट. कभी कभी हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं गोल अचीवमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ज्वाइन अ क्लब और यू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ ट्यूशन सेंटर फॉर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको IAS बनना है, तो IAS की प्रिपरेशन के लिए आप एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप. सो ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं आप अपने गोल को अचीव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, गोल अचीवमेंट के लिए आपने एक ग्रुप बनाया, तो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं गोल अचीवमेंट के लिए. ठीक है, देन प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, दिस इज द लास्ट पॉइंट. ग्रुप हम इसलिए भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि ये हमें नॉलेज देता है और इंफॉर्मेशन देता है. आप देख रहे हो अभी व्हाट्सएप पे भी इतने सारे ग्रुप बनाए जाते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि वो हमें एक नॉलेज और इंफॉर्मेशन देता है. प्रोवाइडिंग नॉलेज, ग्रुप से हमें जानकारी मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, इसलिए भी हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं. प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ग्रुप हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है और इंफॉर्मेशन देती है. सो चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप. हम लोग क्यों ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, हम स्टेटस के लिए कर रहे हैं, हम सेल्फ एस्टीम के लिए कर रहे हैं, हम अपनी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, हम एक गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, और नॉलेज गेन और इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कर रहे हैं. तो देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप. तो बहुत सारे रीजन है जिससे कि हम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं. I hope you understand this topic also and you are able to write down in your examination without going through the book and without seeing the book. By just watching this video, you will be able to understand that लोग क्यों join करते हैं group को. So we join the group for security purpose, for status, for self-esteem, for satisfaction of one psychological and social need, and for gaining knowledge and information and for achievement of our goal. Okay, चलिए आगे बढ़ेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. इट इज अ ग्रुप फॉर्मेशन, अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. ग्रुप फॉर्मेशन, ये तो आपको समझ में आ गया कि व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप. ओके, तो हम लोग ने क्या क्या चीजें समझ ली बच्चों. हमने ये समझा ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और लोग ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं. अब ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रुप बनता कैसे है. ओके, so we will read about the group formation. Now we will read about the group formation. We will focus on this topic. तो have you any idea? I think आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं आइडिया तो होगा ही कि ग्रुप फॉर्म कैसे होता है. हाउ द ग्रुप्स आर फॉर्म, ग्रुप के फॉर्मेशन कैसे होते हैं. सो एनी आइडिया दैट ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है. यस, देयर आर 3 मेन फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप. ग्रुप फॉर्म करने के लिए 3 फैक्टर है जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं. इनमें सबसे पहला है proximity, second is similarity, third is common rules and motive. ये 3 चीजें हैं जिसके बेसिस पे ग्रुप फॉर्म होता है. प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉमन गोल एंड मोटिव. सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी. द वर्ड प्रॉक्सिमिटी इज टेकन फ्रॉम द वर्ड प्रॉक्सी. प्रॉक्सी का मतलब प्रॉक्सिमिटी इज मीन्स नियरनेस. नियरनेस, इसकी द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज नियरनेस. इसका मतलब ही क्या होता है, नियरनेस, करीब. तो ऑब्वियसली नियरनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप. आपने देखा होगा कि यूजली स्कूल में हम उन्हीं लोगों से फ्रेंड
फ्रेंडशिप ज्यादा हमारी होती है जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो नियरनेस ऑल्सो इज वन ऑफ द फैक्टर। एंड अनदर थिंग ऑल्सो, जैसे कि हमारा कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन एटीट्यूड या बैकग्राउंड आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट। सो नियरनेस के बेसिस पे फॉर्म होता है ग्रुप। सेकेंड है सिमिलैरिटी। या आपने देखा होगा, आप अपने फ्रेंड सर्किल को देखो, आपके फ्रेंड सर्किल में ज्यादातर लोग की जो लाइकिंग्स है, डिसलाइकिंग्स है, ऑलमोस्ट सेम होंगी। सो सिमिलैरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो सिमिलैरिटी यानी किस बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ लाइकिंग, डिसलाइक। आपके और आपके फ्रेंड्स के लाइकिंग सेम हो, डिसलाइकिंग सेम हो, ठीक है, उससे भी ग्रुप फॉर्म होता है। लाइकिंग डिसलाइकिंग हो गया। सिमिलरली लाइक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी सेम हो सकते हैं। तो सिमिलैरिटी यानी सेम। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस, सिमिलैरिटी यानी सेम। सेम चीजें होने की वजह से भी जैसे आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, आपके फ्रेंड्स का भी इंटरेस्ट है, आपका एटीट्यूड, there will be a similarity in the interest, there will be similarity in the attitude, values. So that will help you to in the formation of group. Next is the common goal and motive. Yeah, the most and the important point. एक ही लक्ष्य होने की वजह से, एक ही मोटिव होने की वजह से भी हम ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, आप अपने स्कूल में देखो, मैं बार बार इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल एंड यू कैन कोरिलेट विद इट। जैसे आपका फ्रेंड सर्किल है, आप देखो फ्रेंड सर्किल मैक्सिमम टाइम प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे फॉर्म होता है, सिमिलैरिटी पे होता है, या फिर कॉमन गोल मोटिव भी हो सकता है। लाइक उसे भी IAS बनना है तो आपको भी बनना है, या उसे आर्मी में जाना है तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन द आर्मी। सो सेम गोल और मोटिव भी एक फैक्टर है ग्रुप फॉर्मेशन का, विच इज नोन एज द लाइक माइंडेड पीपल। आप कह सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल की संख्या यानी क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से भी ग्रुप फॉर्म होता है। लाइक माइंडेड पीपल यानी सबकी सोच जो है वो एक जैसी है, तो वे लोग ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं क्योंकि उनकी सोच एक जैसी है। जिनकी सोच अलग होती है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं ग्रुप से। ओके, ग्रुप का फॉर्मेशन इन्हीं 3 बेसिस पे होता है, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉमन गोल एंड मोटिव। नाउ हमने ये तो जान लिया कि ग्रुप का फॉर्मेशन होता कैसे, किस ग्राउंड पे होता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज the next topic which I am going to discuss with you is the stages of group formation. Group form कैसे होते हैं? What are the stages? ठीक है, तो ये it is a very important question which was asked in the previous year paper also children, and very important, ये very important question है। stages जो हम लोग भी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये very important question है। stages, ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस। ग्रुप फॉर्मेशन के जो स्टेजेस हैं ये टकमैन ने दिए हैं। टकमैन इज अ नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। टकमैन जो है एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। यू प्लीज रिमेंबर दिस नेम, टकमैन। इन्होंने ही ये स्टेजेस दिए हैं ग्रुप फॉर्मेशन के। ठीक है, before going to the stages of group formation, I want to make it clear the 2 topics I have discussed with you in this video. First, why do people join group, क्यों group join करते हैं, and second, what is the factors which determine in the formation of group। कौन सा फैक्टर है जैसे कि जो डिटरमाइन करते हैं ग्रुप के फॉर्मेशन पे, जैसे कि कॉमन गोल एंड मोटिव हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, सिमिलैरिटी, इन सारी वजहों से लोग ग्रुप को फॉर्म करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं विच इज अवर लास्ट टॉपिक। लास्टली हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, तो कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि ऑब्वियसली आपको अगर याद होगा कि जब भी ग्रुप फॉर्म होता है तो कुछ बेसिक स्टेजेस आते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन होता है पहले, फिर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन होता है, फिर परफॉर्मेंस होता है और डिसमिसल होता है।
टकमैन के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल वे में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि जब भी ग्रुप आता है तो ऑब्वियसली पहले ग्रुप फॉर्म हुए, फिर ग्रुप फॉर्म होने के बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद क्या होता है कि स्टेबलाइजेशन आता है। एक टाइम आता है जब आप स्टेबलाइज हो जाते हो, एवरीथिंग गेट नॉर्मल। स्टेबलाइजेशन के बाद अब आप परफॉर्मेंस करते हो जिस एम के लिए, जिस मोटिव से वो ग्रुप बना था, और व्हेन दैट एम एंड मोटिव इज फुलफिल्ड, यू द लास्ट स्टेज इज द टर्मिनेशन स्टेज यानी डिसमिसल, द एंडिंग ऑफ द ग्रुप। तो ग्रुप इसी तरह फॉर्म होते हैं बच्चों, फॉर्मिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्टेबलाइजेशन होता है, परफॉर्मेंस होता है, फिर डिसमिसल होता है। इसी कंसेप्ट को टकमैन ने स्टेजेस के नाम दिए, जैसे कि सबसे पहला स्टेज होता है फॉर्मिंग स्टेज, सेकेंड होता है स्टॉर्मिंग, थर्ड होता है नॉर्मिंग, फोर्थ होता है परफॉर्मिंग, एंड लास्ट होता है एडजर्निंग। ये 5 हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ये टकमैन ने 5 स्टेजेस दिए हैं। प्लीज कीप इट इन ऑन रिवाइजिंग and on the basis of revision you will definitely learn these concepts, and these all are related to the forming means formation, storming is a stage of conflict, norming is a stage of stabilization, performing is a stage of performance, and adjourning is a stage of dismissal। तो ये पांचों उन सारे कंसेप्ट से कोरिलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला स्टेज है फॉर्मिंग, ऑब्वियसली नाम से बहुत इजी है, पता चल रहा है कि इसमें फॉर्म हो रहा है व्हेन द ग्रुप मेंबर फर्स्ट मीट, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द ग्रुप, द गोल एंड हाउ इट इज टू बी अचीव्ड। So people try to know each other and assess whether they will fit in, and there is an excitement as well as apprehension. So this stage is called the forming stage. Forming stage वो stage है जहाँ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट होता है कि इतने सारे मेंबर्स से मैं मिल रहा हूँ, और एप्रीहेंशन भी होता है, जजमेंट भी उसी समय हो रहा है, इवैल्यूएशन भी हो रहा है कि मैं इनसे फिट हो पाऊंगा या नहीं, या ये लोग मुझसे फिट हो पाएंगे या नहीं, या हम जिस गोल या के लिए ये ग्रुप बनाए हैं वो अचीव हो पाएगा कि नहीं। सो देयर सो मेनी लॉट्स ऑफ एंड पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ये सब प्रोसेस हो रहा है फॉर्मिंग में। इसके बाद आता है स्टॉर्मिंग। अब ऑब्वियसली आप देखते हैं कि जैसे एक फ्रेज है, आपने सुना होगा कि जहाँ 4 बर्तन हैं तो वहाँ लड़ाई होंगी ही। तो ऑब्वियसली ग्रुप बना है, 10 लोग आए हैं, तो कुछ स्टॉर्मिंग भी तो हो रहा है। स्टॉर्मिंग को आप को रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते, स्टॉर्म मतलब तूफान आना। तो ग्रुप में तूफान भी आएगा, विच इज अ स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। So often after this stage there is a stage of intra-group conflict, मतलब intra means group के अंदर ही conflict होता है, conflict among the member about how the target is to be achieved, who is to control the group, who is to perform the task. When the stage is completed, some sort of hierarchy of leadership in the group develop, and clear vision is there how to achieve the goal. कॉन्फ्लिक्ट होती है कि स्टॉर्मिंग होती है, कंफ्यूजन होता है कि कैसे बनेगा, कैसे करेंगे, बट धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द एंड ऑफ दिस स्टेज the group members are able to know how they will achieve their goal. So now they will move to the next stage which is the norming stage. Now इस स्टेज पे अब वो अपने ग्रुप के लिए एक नॉर्म सेट करते हैं, एक रूल सेट करते हैं। The group member by this time develop norms related to group behavior. This lead to a development of positive group identity. इसमें एक पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है।
आप समझ रहे हैं बच्चों कैसे हो रहा है? फॉर्मिंग हुई, स्टॉर्मिंग हुई, नॉर्मिंग हुई, यानी सारे ग्रुप मेंबर्स ने मिल के अपने ग्रुप के लिए एक नॉर्म सेट किया कि हम लोग इस टाइम पे आएंगे, इस टाइम पे जाएंगे, ये चीजें हम लोग करेंगे, किसको हमें क्या टास्क असाइन करना है, कौन क्या टास्क एग्जीक्यूट करेगा, कौन कैसे परफॉर्मेंस करेगा, ये सारी चीजें हमने सेट की नॉर्मिंग में। अब नॉर्मिंग के बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेज परफॉर्मिंग, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज। अब परफॉर्मिंग स्टेज पे हम परफॉर्म करेंगे, उसको एक्शन को हम लोग करेंगे। जो प्लानिंग की हमने, जिस चीज के लिए हमने ग्रुप बनाया, फॉर्मिंग किया, स्टॉर्मिंग किया, नॉर्म्स किए, अब दैट इज द टाइम, दिस इज द टाइम फॉर शो। So by this time the structure of the group has evolved and is accepted by group member. The group move toward achieving the group goal. For some this may be the last stage of group development. ठीक है, तो परफॉर्मिंग का टाइम आ गया। अब परफॉर्मिंग जैसे ही आपने जो भी गोल के लिए आपने ग्रुप बनाया था, वो गोल अचीव हो गया, आपने परफॉर्म कर दिया। नाउ अब लास्ट स्टेज में हम लोग जाते हैं विच इज अ adjourning stage. Now this group will be terminated. They are in the phase of the ending of their group. Now it also differ from individual to individual and group to group. Sometime बहुत से लोग उस ग्रुप को डिस्पेंडेंट नहीं करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, दे हैव अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इस तरीके से करते हैं, कुछ डिसबेंडेंट कर देते हैं। जैसे आपने देखा और एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं ग्रुप का दूंगी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, अभी आप को रिलेट कर सकते हो। जैसे कोई भी गोल के लिए ग्रुप बनाया जाता है, उसे फॉर्म करते हैं, उसमें स्टॉर्मिंग होती है, सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या है, क्यों है, मुझे क्यों ऐड किया, या क्या है, स्टॉर्मिंग हो रही है। फिर एक नॉर्मिंग होती है, जो उसका हेड है वो सारी चीज़ें बताता है कि इसलिए आपको ऐड किया, ये चीज़ें आपको करनी है। द पर्सन विल टोल्ड द एवरीवन, द एवरी मेंबर दैट दीज आर योर गोल, दीज आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन दे परफॉर्म दैट वन, एंड आफ्टर द परफॉर्मेंस दे कम टू द adjourning stage which is the ending of the group, ending of the group. So here we have completed this topic also. So हमने क्या क्या डिस्कस किया, लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, क्या स्टेजेस होते हैं। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वन टर्म विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज द ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक क्या होता है? ग्रुप में जब एक्सट्रीम कोहेसिवनेस होती है, उसी को ही हम लोग ग्रुप थिंक कहते हैं। इट वॉज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ग्रुप थिंक। जब ग्रुप में एक्सट्रीम कोहेसिवनेस होती है, एंड दैट एक्सट्रीम कोहेसिवनेस इज टर्म्ड एज ग्रुप थिंक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप थिंक। ठीक है, extreme cohesiveness means belongingness, extreme belongingness. They have an extreme unity in the group, so we call them group think. Group formation के बाद एक ग्रुप का स्ट्रक्चर बनता है, ग्रुप एक स्ट्रक्चर में आता है। इस स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर मेनली 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज द रोल, सेकेंड इज द नॉर्म, थर्ड इज द स्टेटस एंड फोर्थ इज द कोहेसिवनेस। जब ग्रुप बनता है, फॉर्म हो जाता है, तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है रोल्स, सेकेंड इज द स्टेटस, थर्ड इज द नॉर्म्स, and last is the cohesiveness. इसको बहुत डिटेल में हम लोग कमिंग वीडियोस में समझेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये समझाऊंगी कि क्या एलिमेंट्स हैं ग्रुप स्ट्रक्चर के। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल एंड आई जस्ट सजेस्ट यू टू डू अ रिविजन्स
जितना रिवीजन आप कर सकते हैं उतना करिए, बिकॉज ओनली द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. द मोर एंड मोर you practice, the more and more you revise, the more you will be able to understand your concepts. So I just say thank you so much for carefully listening and watching my videos. I'm very happy if you score very good marks in board examination with the help of these videos. Thank you so much.